Welcome to the another episode of Indian Warrior Talk Show. Today we have a very special guest, Lieutenant Commander Amya Patra sir, who is a retired Indian Navy officer and now working as a corporate leader and a motivational speaker, author. His hats. Okay, lot more feather to his hats. So आज का जो हमारा टॉपिक है, practicing gratitude and focusing on positives in life. So I don't think that we can have a better person than Amya Patra sir to discuss on this topic because I have seen him very closely इनकी जो journey रही है, starting from uh, joining the Indian Navy to following his passion. So इन सारी चीजों के बारे में हम आज discuss करने वाले हैं. So welcome. Go ahead. So sir, the topic for today which we have chosen is practicing gratitude and the importance of positive thinking in our life. So first of all, let us know what does gratitude actually mean to you? What gratitude means to me is, I would say, every human being who are on this, living on this earth, should be grateful for their existence. As simple as that. Because today, no matter what we have created, we could not actually create another human being. Okay? Another human being on our own. In the sense, if I am a person who I could clone myself and create another person, so far it has not been possible, right? So there are limitations that we have as human beings, and there are certain things that are strengths that we have been given. And you know what are the biggest thing that we as a living being have got as a gift is one simple thing that no other animal or species in this world can do, is a simple thing called imagination. The power of thinking. Others do not have that. As long as we have been given this particular thing, I feel we are one of the privileged lot. In the entire species that exists in the world, we are already been told that we are privileged. When you are privileged, I think the first thing that you should always do is to thank the creator that for creating the way we are created, right? So this is something which is every single morning when we are a very बहुत ही simple सी चीज है. Every day when you get up in the morning, okay, your clock is already ticking. You know from the day one that you would be dying one day. Despite that, you know, we put alarm in the clock, get up in the morning with the belief that we have another day, right? So every time I wake up in the morning and we have another day, I think that first and foremost thing that I do is thank God for giving me another day, another opportunity to grow and do something purposeful in this world, right? So ये जो ritual है मेरे लिए, I won't say that what it means to me, but I think gratitude is a ritual for me, and without that ritual I feel that my day won't start. So this entire day that I'm looking forward to won't start if I do not do this particular ritual. So gratitude is more of a ritual to me, and that is how we follow it. So but when we follow it, is it just thanking God or being grateful to somebody for doing something to you? No, gratitude doesn't really mean that. I think gratitude is much beyond being thankful or being grateful to somebody, or practicing being they say that you may not be the best version of yourself, but you can be kind to yourself, you can be kind to others, you know. So ये kindness, ये जो compassion है, ये जो आपकी empathy है, तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग जो आज आपके चारों और जो लोग हैं उनके तरफ जो empathy है, और उनके तरफ एक सद्भावना है जिसमें आप सोचते हो कि we all can do it, you know. It's a responsibility which is like, I will say social responsibility बोलते हैं. I say that, you know, it's not just a responsibility of a corporate, it is more of a responsibility of an individual. कि आपने कोविड के टाइम में ये बहुत ही रियलाइज किया होगा कि बोलते कि nobody is safe until everybody is safe. You agree with that? So ideally speaking, मेरे हिसाब से मैं just safe को replace कर रहा हूँ happy से. Nobody is happy till the time everybody is happy. Believe me in this, that कि जब तक आपके आसपास के लोग दुखी हैं, आप कभी खुश नहीं हो सकते, कभी नहीं. जब तक आसपास के लोग, सराउंडिंग में लोग खुश हैं, तो आप खुश हो. तो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि ये हैप्पीनेस का की क्या है. देयर इज नो की टू हैप्पीनेस. ऐसे नहीं कि चाबी लिया, खोल दिया तो हैप्पीनेस मिल गया आपको, नहीं है. आई एम टेलिंग यू द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ the key to happiness, I say,
is not to find the key itself. आप समझ रहे हो मेरी बात? Yes, yes. कि अगर आप चाबी ढूंढते रहोगे ना, पूरे जिंदगी आप दुखी रहोगे. जब आपने चाबी ढूंढना बंद कर दिया, हैप्पीनेस खुद ब खुद आपके पास आएगी. So that is how the whole idea and the whole art of gratitude comes to you. जब आप बोलोगे कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ gratitude, no, you are not. Gratitude is somewhere where you do not take it to you saying that I am practicing it. It is never told. It just comes to you because you've been kind, because you have been compassionate, because you have been empathetic towards others. That's how it is. Because इस particular world में you are not the only one. किसी दिन भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए कि सिर्फ आप अकेले रह जाओ, क्या करोगे इस चीज का जिसके लिए तुम स्ट्रगल कर रहे हो? टुडे यू हैव बीन फाइटिंग इट आउट कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे पोजीशन चाहिए, पावर चाहिए, ऑल दिस गुड, बट भगवान ने आपकी मान ली, बोलते सब दे दूंगा बट कोई और नहीं रहेगा, क्या करोगे इस पावर का? हैव यू एवर थॉट ऑफ इट? It's all useless. It's all useless. It's because others are existing, probably all these things matter to you. The greed, the I would say the hunger, the power, the greed for power, the hunger for power, the position, all this particular thing, the I would say relentlessly fighting, following money, and ignoring the loved ones, all this do happen to you. But कभी सोचा है ये जो पूरी सृष्टि है, इस पर्टिकुलर चीज का पर्पस ही यही है कि ये जो आपको बनाया गया है, इसलिए बनाया गया है कि आपकी खुशियां इसी से ही है. अगर ये नहीं है तो आपकी कोई खुशियां नहीं है. सो ग्रेटिट्यूड इज ऑल अबाउट respecting that what has been around you, what has been created around you, and living with it. So मेरे लिए ये gratitude. Correct, sir. So as you said, we should always be grateful for the life which we have got the next day when we wake up. But we often see a lot of people give excuse कि यार मेरे पास ये नहीं है, I don't have this, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है. But we never show our gratitude to the thing which we have, right? So life में सर ऐसा कोई moment आपके life में रहा है जब आपको लगा कि नहीं सारी चीजें not according to your plan, लेकिन फिर भी आपने उस ऊपर वाले पर विश्वास किया और you were thankful to the God for your life which you have got. So ऐसा कोई incident can you share related to the gratitude जब आपको विश्वास हुआ कि नहीं we should be always grateful to the people and the God? Yes, I think to my personal experience, if I see, there are many instances, Himanshu, because I think I feel lot many situations in my life has happened where I had taken this particular thought into my mind where I probably need to be giving up everything that I will I probably have today. Like बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ग्रेटिट्यूड से ज्यादा मैं ये बताऊंगा कि जो भरोसा है, जो फेथ है ना, this particular faith is something which is very very important in my own life also. I have faced simple things like that. मेरी एक फिल्म थी, पहली फिल्म जो मैंने बनाई थी वो थी कब कहाँ कैसे. ओके, सो ये जो फिल्म है उसकी कहानी कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के ऊपर है कि ये भगवान जो है वो है या नहीं है, हैं तो किस फॉर्म में है और दिखते कैसे हैं और उन तक पहुंचने का जरिया क्या है. तो ये सारी चीजें जो है हमारे दिमाग में, हर चीज किसी के दिमाग में है टुडे, राइट? तो मेरी जो ये कहानी है, ये बहुत ही सिंपल सी कहानी है एक बच्चे की जो ये चाहता है कि आज वो अपने हाथ में, जो मम्मी उसके जो स्कूल भेजती है तो बोलता है कि मुझे टिफिन बॉक्स जो आप दे रहे हो तो मेरे लिए एक और देना. तो उसकी मम्मी बोलती है क्यों, क्या हो गया? नो, आज मैं भगवान जी जो है उनके साथ लंच करने वाला हूँ. तो उसकी मॉम बोलती है कि भगवान जी के साथ लंच करने वाले हो, ये कैसे पॉसिबल है? तो बोलते तुम मुझे पूछो मत, अगर दोगे तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा. तो उसको एक डब्बा और करके उसकी मम्मा दे देती है, ये चला जाता है स्कूल. अब जाके अपने जब उनका लंच ब्रेक होता है तो वो बैठा रहता है, वेट करता है कि भगवान जी आएंगे, भगवान जी आएंगे, भगवान जी आते नहीं है. तो उसका जो डब्बा है वो तो है, वो अपना जो डब्बा है वो भी नहीं खा रहा है, बोल रहा है कि आज तो मैं भगवान जी से ही खाऊंगा, अदरवाइज तो मैं खाऊंगा नहीं. तो डब्बा जो है वेट कर रहा होता है, धीरे धीरे वो जो लंच पीरियड वो खत्म हो जाता है. उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको लगता है कि अब तो आए नहीं भगवान जी. तो अचानक उसको कोई रोती हुई एक औरत की आवाज सुनाई देती है. तो वो गेट से बाहर जाता है. जब बाहर जाता है तो एक औरत वहां पे रोड पे बैठी हुई है और रो रही है. और ये वहां तक पहुंच जाता है और उसके बाद कुछ उनमें कोई कम्युनिकेशन नहीं, कुछ नहीं. वो देखती है इसको और ये इसको देखता है और उसके बाद वो कुछ नहीं करता, अपना डब्बा निकालता है और उसके हाथ में दे देता है.
और वो जो औरत है, अचानक उसकी आंखों से जो आंसू बह रहे थे वो और बहने लगते हैं, और वो बस उस लड़के को देखती रह जाती है और कुछ बोल नहीं पाती वो। उसके बाद ये घर वापस आ जाता है, वो अपने घर चली जाती है। ओके। और जब ये अपने घर वापस चला जाता है, उसकी मम्मी बोलती है कि क्या हुआ दूसरा डब्बा? तो वो तो मैंने भगवान जी को दे दिया। तो उसकी मम्मी घबरा जाती है, ये कैसे? हाउ डू यू नो कि वो भगवान जी हैं? तो बोलते हैं कि ये भगवान जी का इसलिए मैंने बता रहा हूँ क्योंकि मैंने जब उनको डब्बा दिया तो उन्होंने मुझे चॉकलेट दिया, और मैंने मेरे दिमाग में सोच रखा था कि जब भी मैं उनको ये लंच दूंगा तो मुझे चॉकलेट देंगे, उन्होंने दिया। तो बोलते हैं अच्छा, बहुत बढ़िया। और दूसरे साइड में ये जो औरत है, ये डब्बा लेके जाती है अपने झोपड़ी में, और वहां पे 3 बच्चे हैं, और उनके माँ बाप गुजर चुके हैं, ये उनकी दादी है। उनके लिए खाने के लिए 3 दिन से परेशान थी वो कि भाई बच्चों को मैं खाना नहीं दे पा रही हूँ, भीख मांग रही हूँ, जितना मुझे मिल रहा है उसमें से खाना नहीं हो पा रहा है। और ये खाना उसके लिए बहुत बढ़िया था, उसने जाके अपने बच्चों को बांट के खिला दिया। और उसके बच्चे ने पूछा कि ये खाना कहाँ से मिला? बोलता है आज भगवान जी आए थे। बोलता है अच्छा, वो कैसे थे? बोलते तुम्हारे जैसे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही नादान, बहुत ही मासूम। तो ये भगवान जी की कहानी है मेरे हिसाब से, कि हमारे आसपास मेरे साथ एग्जैक्टली ये चीज़ कई बार हुआ है, जहाँ पे मुझे लगता है कि लाइक आई विल टेल यू व्हाट, मैं किसी I was in Chennai when I was posted in Cochin, and I happened to go to Chennai for a job. And what has happened is I was staying, from my this thing. I want to meet a friend of mine. वहाँ पे मैं गया और उसके पास रुका। वापस जब आ रहा था तो देन आई वेंट टू बोर्ड द ट्रेन स्टेशन में, ठीक है। और उस दिन चेन्नई में इट वाज साइक्लोन, बारिश आ गई, इतनी तेज बारिश हुई कि एकदम हर जगह फ्लडिंग हो गई। Suddenly in the station I realized that कि my identity card has, वो चेंज जब कर रहा था, मेरा आई कार्ड जो है वो रह गया मेरे दोस्त के पास। And without that I can't go back to my base, because loss of identity card is actually an offense, and punishable offense, right? So, and it will be very difficult for me to go back to the thing, and I was a trainee that time, and I didn't know what to do. And उस टाइम पे I was calling my friend saying that where are you, where are you, where are you? And this guy is trying to come with that iCard, but buses are jammed, everything is like there is water logging everywhere, तो वो आ ही नहीं पा रहा है। वो कोशिश तो कर रहा है लेकिन वो आ नहीं पा रहा है। जस्ट इमेजिन, बट एग्जैक्टली जब ट्रेन छूटने वाली है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इट्स लाइक वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाला सीन था। वो भाग भाग के आ रहा था, एंड आई एम देयर एट द डोर, आई एम थिंकिंग दैट अब क्या करूं, समझ में नहीं। तो भाग के आया, उसने हैंड ओवर किया, मैंने ले लिया। एंड देन आई वेंट बैक एंड आई कॉल्ड हिम दैट कि कैसे आया तू? बोलता आई कांट टेल यू। मैंने बोला क्या? मैंने ऑपोजिट साइड में, मैं जब ऑटो में बैठा तो मेरा ऑटो जाम हो गया, और देयर इज नो वे आई कुड गो, एंड आई डिडंट हैव अ व्हीकल दैट टाइम। ऑपोजिट साइड में लेन में एक बंदा बाइक में था, मैं गया और सीधा उसके बाइक पे बैठ गया। तो वो बंदा बोलता है, और वो भी तमिलियन था, दैट गाय एंड दिस गाय कुड नॉट इवन कम्युनिकेट। और ये बोलता है भाई दिस इज ए नियर डेथ सिचुएशन, आई हैव टू बी देयर इन द स्टेशन। उसको कुछ समझ में नहीं आया, उसने बोला ठीक है स्टेशन, हाँ। और वो बंदा कैसे गाड़ी भगा के वो उस पानी में से वो निकाल के मुझे क्यों आया पता नहीं। एंड ही सेड आई टर्न्ड बैक टू थैंक हिम, दैट गाय वैनिश्ड। और ये हो ही नहीं सकता था कि वो बंदा ऐसे गायब हो जाता, क्योंकि उस जगह पे इतनी भीड़ थी कि वहां से वो बंदा गाड़ी भी निकालना मुश्किल था उसके लिए। बट मैं जस्ट पलट के उसको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, दैट गाय इज नॉट देयर। बट ट्रस्ट मी, दैट डे आई फील गॉड वाज देयर टू गिव मी दैट कार्ड बैक, and he was God. for me. It doesn't matter who that person was, for me he was nothing less than God. And when I went back with the iCard, even today I remember that friend, and that friend remembers that person so much, can't tell you. इसीलिए लाइफ में हमेशा आई थिंक कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे समझ के बाहर है, इट इज बियॉन्ड अस, एंड वी शुड ऑलवेज हैव दैट फेथ दैट देयर इज समबडी हु इज लुकिंग एट अस, टेकिंग केयर ऑफ अस, एंड दैट इज नोबडी बट गॉड। और वो कोई और नहीं है, इट इज अमॉन्गस्ट अस, इट इज हमारे आसपास ऐसे लोग जो आपके नीड में आके हमारी मदद करते हैं। वो भले एक बड़ा स्ट्रेंजर हो, जिससे आपकी कोई बात नहीं हुई हो, जो आपको जानता तक नहीं हो, लेकिन उस समय जो आपके लिए खड़ा हो जाता है ना, वो आपका भगवान है। करेक्ट सर। तो एक देयर इज अ स्टोरी आल्सो ना, कि एक देयर वाज अ स्मॉल बॉय, वो सोचता है कि आज मैं जाके पानी में डूबूंगा और देखूंगा कि भगवान मुझे बचाने आते हैं कि नहीं। तो पानी में तो चला गया, और जब डूबने लगा तो एक नाव वाला आता है उसको बचाने।
तो बोलता है नहीं नहीं मुझे आप मत बचाइए, भगवान आएंगे मुझे बचाने। तो फिर वो तो चला एग्जैक्टली जाता है बोट वाला, फिर दूसरा आता है बोट वाला, तो बोलता है अरे आ जाओ, तो बोलता है नहीं मुझे भगवान बचाने आएंगे। फिर जब वो फाइनली भगवान के पास पहुंचता है और पूछता है कि कि आप क्यों नहीं भगवान आए आप मुझे बचाने के लिए। तो भगवान बोलते हैं वो जो दो बोट वाले आए थे वो कौन थे फिर मैं ही तो था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली आई थिंक ये इतना सिंपल है, ये इतना ही सिंपल है, लेकिन लोग नहीं समझ पाते। तो इट इज जस्ट क्या बोलते हैं, योर फेलो मैन, लविंग योर फेलो मैन हु आर विथ यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो जो चीजें कर देते हैं वो मैजिक हो जाता है। इट्स नथिंग लेस देन मिरेकल। यस। सो आजकल हम सर बहुत मेंटल मेंटल हेल्थ मेंटल वेलबींग की बातें भी करते हैं, तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं दिस प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड इन योर डेली लाइफ इज समवेयर रिलेटेड टू बीइंग मेंटली एंड मेंटली व्हाट बीइंग मेंटल एंड वेलबींग में कहीं हेल्पफुल होता है ये? एब्सोल्युटली हिमांशु, क्योंकि मुझे लगता है जैसे आप अभी मैं उसी चीज के बारे में बात कर रहा था, लाइक मेंटल हेल्थ की बात करता हूँ तो मैं आप ये बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है, लेकिन हमें अगर उसका सॉल्यूशन ढूंढना है तो मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ, या करेक्ट। सो मैं आपको मेंटल हेल्थ के ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है विच again was a film that we had made on suicide prevention called Unend, है ना। किसी एंड को रोकने के लिए हमें अनएंड करना पड़ेगा उसे। अनएंड क्या है? अनएंड इज अबाउट एक्चुअली प्रिवेंटिंग व्हिच इज गोइंग टू एंड योर लाइफ, राइट। सो मेरे साथ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये कैसे हुआ। यू नो कभी कभार आपको लगता है कि बहुत ही चीजें जो है वो किसी पर्टिकुलर आदमी इंसान से रिलेटेड है जो उसके साथ हो रहा है, तो उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। तो ही इज इन द फाइटिंग इज ओन बैटल एंड वी कैन स्टे आउट ऑफ इट। ये जनरल थॉट प्रोसेस है लाइफ में, राइट। So I happened to be there in one of the, in one night I was there in a coffee shop, okay, and I happened to see, because being a filmmaker, I do observe people a lot. ये out of habit है, unless until you observe things, you cannot put them into characters. So most of my characters are actually, I would say, inspiration from real life people. ठीक है, so obviously it is, I always keep observing people. So I happen to be sitting there in a cafe, and it happened in Bombay. Okay, so and I'm just sipping my coffee. The exactly, I think 4-5 tables down there is one guy sitting there. Coffee is there. Coffee is cold. I've been observing him for almost say half an hour, 45 minutes. Coffee has been served. Coffee is cold. Sandwich वो बंदा बाद में लेके आया. Sandwich is cold. This person is somewhere else. He's not there. Mentally not present. एंड मैं कुछ देर में उसको देखता रहा और सडनली आई गॉट अ इंस्टिंक्टिव कॉल टू मी दैट आई शुड गो एंड टॉक टू दिस पर्सन. ही इज अ कंप्लीट स्ट्रेंजर. आई हैवंट इवन सीन दिस पर्सन बिफोर. He doesn't even know me. I don't know him, right? I just walked up to him and he was just sipping his coffee and it was cold. And I said, why are you sipping the cold coffee? And this guy looked at me. Excuse me? So I said, may I sit here? He said, yeah. I sat there. He said, what's wrong with you? Nothing wrong. This guy was literally aggressive. Who are you? Why are you asking me? None of your business. All that. And suddenly I said, I completely agree with you. There is something that you are fighting out with. There's absolutely nothing wrong about it. Neither I'm a psychologist to help you at this given point of time. But I have enough time in this world to listen to your story. I won't even open my mouth. There has to be something that is bothering you. I don't know what it is. Okay. Consider me to be a person who would walk into oblivion and not be present tomorrow. You don't even know me tomorrow. It's for the day today. At this point of time, you can talk whatever that you cannot talk to your father, mother, brother, girlfriend, whosoever it is. You will not be able to talk to them. I'm sure there is something that is bothering you. He just looked at me and just took his phone, deleted something, and told me, are you sure you want to talk? I said, yes, I'm here to talk. Then Himanshu, you won't believe, we spoke for the entire night. It started from say around 11, 10:30, 11 in the night till 5:30 in the morning. Okay, he spoke his heart out. He told everything. And at the end of the day, I got to know at that night while speaking to that person, that was his last day.
That was supposed to be his last day. He told me what message that he had actually typed. He showed me that message. He showed me the video that he has made. And he said, had you not come, you would not have been found me. I would have lost my life. I said, that's okay. Then I said, okay, forget about all that. What has happened. Doesn't matter. Now I am hungry. Let's go to Ramashray. There is a place called Ramashray in Dadar, which opens at 5 o'clock in the morning. So we went there, had breakfast, and this guy went back and said that, you know what? I can't thank you enough. I said, don't thank me enough. Only person that you really need to thank is yourself. Thank yourself, because if you had not got that resilience to fight back, you would not be back. And I'm happy that you are back. We are very good friends today. And when I wrote the film Unend, actually the story was written based on that particular night. And I called him for the, when we did a small poster inauguration, I called him to be a part of it. I can't tell you how grateful and how happy he was. So mental health के बारे में मैं यही कहूँगा कि there are so many things that happen in our life, because we being human, we are emotional, and there is nothing to feel bad about it. A lot of people say that I'm very emotional. Sorry, I'm very emotional. You do not be sorry about it. Being emotional is basically the strength that the God has given to us. None of them can actually have that kind of emotion that we have. So we should be grateful that we are emotional. If somebody is emotional, yes, we have emotion, we need to express it. हम क्या करते हैं? We suppress those emotions. हमें कोई ये नहीं सिखाता कि एक्सप्रेस कैसे करते हैं. मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था. I read an article where a university in UK, there is a professor. She's a lady who's basically 40-45-year-old, and she lost her son, who's 19 years old, barely 19 years old, to suicide. And after that, she wrote an article, and she said, I failed as a psychologist because my own son could not share his feelings with me. And you know why? Then I retrospected, why did I fail as a psychologist or a mother? That हम पहले से जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तब से हम वो गलतियां करते आते हैं एज पेरेंट्स. व्हाट डू वी डू? बच्चा गिर जाता है, चलते चलते गिर जाता है, चोट लगती है, वो रोता है, तो हम क्या करते हैं? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी डू? नो बेटा, कुछ नहीं हुआ है, इससे थोड़ी रोते हैं, ये तो छोटा सा दर्द है, निकल जाएगा, डरते नहीं, रोते नहीं है. तो अगर तब भी रो रहा है, बोलते अरे क्या बात है, लड़का होके रो रहा है तू, हाँ तो ब्रेव है, तो स्ट्रांग है, नहीं रोना चाहिए बेटा. नाउ वी कीप डूइंग दिस थिंग year and year and year on and on and on, to an extent where that particular person forgets or doesn't understand how much of a pain is good enough to be shared. It goes into a state where he doesn't understand कि क्या मैं ये ले पाऊंगा या मैं किसी को इसे शेयर कर पाऊंगा. नहीं कर पाते. That person who was sitting in that cafe had so many emotions suppressed inside himself that he was suffocated. He couldn't breathe. तो मेरे हिसाब से एक पर्टिकुलर एक्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, जो हमें उस ग्रेटिट्यूड की तरफ लेके जाता है, वो है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो. इसमें मैंने वो एग्जांपल आपको दिया था. हमारा जो फोन है उसमें एक सिम कार्ड है, और हमारा फोन है उसमें एक मेमोरी कार्ड भी है, राइट? उस मेमोरी कार्ड जो है, जब आप फोटो वीडियो डालते रहते हो तो वो फुल होता रहता है. एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसे आता है जब आप कोई वीडियो लेने वाले होते हो, बोल देते हैं मेमोरी इज फुल, राइट? Emotions are also like that. The moment you keep storing them inside you, small little things in life, you keep storing them. उसने मुझे ऐसा क्यों कहा? I don't deserve this. उसने मुझे, somebody has rejected me. Somebody has abused me. And somebody has undermined me. ये सारी चीजें जो है, वो सारी चीजें हमारे अंदर है. और किसी दिन जब ज्वालामुखी बन के वो फटता है, तो हम खत्म हो जाता है, राइट? तो द आर्ट ऑफ लेटिंग गो में आपको एक ही चीज करना है. इफ समबडी टेल्स यू समथिंग, वेरी सिंपल थिंग. मैं तो ये एक पर्टिकुलर चीज अगेन आई विल टेल यू अ स्टोरी. आई विल टेल यू कि ये आर्ट ऑफ लेटिंग गो क्या है. मुंबई के लोकल में चलता जा रहा था. आई हैपन टू सी अ फिल्म व्हिच इज बेस्ड ऑन दिस. तो एक बंदा जा रहा था, हर दिन जाता था, कॉर्पोरेट में काम करता है, देखने में बहुत अच्छा नहीं है, काला सा है, देखने में बहुत ही गंदा दिखता है. तो ऑब्वियसली ऑफिस में जाते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं, अरे यार तू भी नहीं यार, कहाँ कॉर्पोरेट में आ गया, तुझे तो साला पियोन होना चाहिए था, तुझे तो झाड़ू वाला होना चाहिए था, सफाई वाला होना चाहिए, ऐसे मजाक उड़ाते थे. ट्रेन में जाते तो सब उसकी तरफ देखते थे, यार
अपना जेब जो है पॉकेट वॉकेट डाल के रखते थे, कहीं जेब ना मार दे, he is the kind, this is the kind of treatment he used to get. He always used to come back home, अपने आप को मिरर में देखता था, बोलता था अरे क्या भगवान ने बनाया मुझे, हर कोई मुझे देखता है और ऐसे देखता है जैसे मैं चोर हूँ, जैसे मैं बिल्कुल मक्कार हूँ और कोई ट्रस्टवर्दी नहीं हूँ, हर चीज मुझे मतलब वो धिक्कार है ऐसी जिंदगी पे, ऐसे चेहरे पे भगवान ने क्या दिया तुमने। और ये उसके अंदर बढ़ता जाता था और डेली वो लोकल में जैसे धक्के खा के ट्रैवल करते हैं वैसे करता था। तो एक बंदा है जो आता था हर दिन उसी ट्रेन में चढ़ता था और ये पीछे उसके पास खड़ा था, तो किसी ने उसको धक्का मारा तो खुश हो गया, वो पीछे देखा, बहुत गाली दी इसको, बोलते अरे क्या है तुम धक्का मारते हो, ये करते हो, क्या करना चाहते हो, तुम पॉकेट मार, तुम चोर हो साले, ये करते हो वो करते हो, बहुत सारी चीजें उसने कह दी। इस बंदे का मतलब आंखों से आंसू निकल आए, वो ट्रेन से उतरा और बोला शिट, मुझे लगता है यही ट्रेन पे कूद के मर जाऊं, क्या है ये लाइफ, इतने अच्छे रेस्पेक्टेबल कंपनी में काम करता हूँ और लोग मुझे ऐसे धिक्कारते हैं, क्या मतलब है। बड़ा दुखी हो गया उस दिन। अगले दिन उसी ट्रेन में वो चढ़ा, वही बंदा खड़ा था, लेकिन उसके पीछे वो दूसरा बंदा खड़ा, इस बार वो नहीं था, तो धक्का मारा अगेन, दूसरे बंदे ने पुश किया, वो व्हाइट वाला जो शर्ट पहना था वो बंदे का खराब हो गया शर्ट, वो पीछे देखा, बोलता है फिर गाली दी उसने, जो गाली उसने दी थी इसको वही गालियां उसने उसको भी दी। ये बाहर देख रहा था, बोला कि अरे ये तो उसको भी वही गाली दे रहा है। तो दूसरा बंदा जो है वो तुम्हारी तरह स्माइल कर रहा था हिमांशु, तो ये बंदा घबरा गया, बोलता है अरे इसने इतनी सारी गालियां दे दी और ये बंदा स्माइल कर रहा है। ट्रेन रुकी, वो उतरा, जब दूसरा बंदा है उसके पास गया, बोलता है अरे गजब आदमी हो यार तुम, उस बंदे ने इतना गालियां दिया तुमको, तुम पलट के भी कुछ नहीं बोले और हंस रहे हो। तो वो बंदा पलट के उसको क्या बोलता है बताए दोस्त, ये बंदा जो है ना मुझे अंधेरी से घाटकोपर तक जाता है, जितना उसने जाना मुझे जो भी बोला तो अंधेरी से घाटकोपर तक था, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक था, मैं अपने आप को 30 साल से जानता हूँ, तो ये क्या बताएगा और मैं क्या सुनूंगा। मैं हंस रहा था, गधा है जो कुछ नहीं पता इसको। तो अपने आप को अगर आप नहीं जानते, आपका अपने आप का आप वैल्यू नहीं करते, तो ये दुनिया आपकी वैल्यू नहीं करने वाली। तो लेटिंग गो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज यू हैव टू वैल्यू योरसेल्फ, टू लेट गो एनीथिंग। जहां पे आपको लगता है somebody is putting you down, somebody is telling you things that they are not supposed to do, somebody is undermining you, devaluing you, always smile and walk away, because it's not worth it. If somebody has told something which is more of a rejection, you have always time to tell them that no, you cannot say this, my self-esteem does not allow you to say this. If you have something bad to say about me, justify it. I'm ready to take, I'm ready to argue. I'm telling you 90% of the time people will walk away because they have no argument. There is no argument when somebody is trying to devalue, उसमें कोई argument नहीं है. So letting go is an art that you need to practice. For that, loving yourself, valuing yourself is important. हमने बात तो किया gratitude and all, लेकिन how do we incorporate those things in our daily life? How do we incorporate? हाँ, ये तो incorporate करने वाली बात है। जैसे मैं आपको सिंपल क्या बोलते हैं, एक और स्टोरी मैं सुनाता हूँ। मुझे आई थिंक आई ऑलवेज कनेक्ट थिंग्स विद स्टोरीज, राइट। जैसे मैं आपको ये कहानी है एक मेजर साहब की, जो अपने पलटन को लेके जा रहे थे ग्लेशियर की चोटियों में चढ़ के अपने पोस्ट पे, उनको जाना था वहां पे। तो ये ट्रांजिशन चल रहा है, ये जाएंगे तो दूसरी जो ट्रूप है जो वहां पे है, बटालियन है, वो नीचे आएगी और ये ऊपर जाएंगे। जो ऊपर चढ़ने का जो टाइम होता है वो बहुत ही टेस्टिंग टाइम है, क्योंकि ऑल्टीट्यूड हाई है, ठंड है, इट्स कोल्ड, इट इज वेरी वेरी कोल्ड। और वो अपने साथ आप 20 लोगों को साथ में लेके चल रहे हो, तो जस्ट इमेजिन यू आर टेकिंग एवरीथिंग, योर एम्युनिशन से लेके लॉजिस्टिक से लेके हर चीज वो लेके जा रहे हो, राइट। तो इट्स अ टफ टास्क। और ठंड में जब यू आर देयर इन कश्मीर एंड यू आर इन दैट सबलाइम टेम्परेचर्स व्हिच आर लाइक नेगेटिव, तो ऑब्वियसली थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जितना भी मोटिवेशन आप दे दो, लेकिन पीपल ऑलवेज गिव अप एट वन गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक जगह पे आके इनकी जो बटालियन है वो बैठ गई, ठीक है। अब उनको मोटिवेट करना है, तो उन्होंने कहा कि भाई क्या है ऐसा जो बताओ जिससे आप आगे बढ़ोगे। बोलते सब हमें कुछ नहीं चाहिए, सब एक कप चाय मिल जाए बस। तो इन्होंने बोला सही बात है, लेकिन चाय कौन बनाएगा, अब यहाँ पे इस चोटियों में कहाँ से मैं चाय लेके आऊँ, ठीक है। तो उन्होंने कहा देखो आई प्रॉमिस यू, जैसे ही हमको मिलेगा कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे हम लोग चाय मिल सकती है, पहले इंस्टेंट में मैं आपको पिलाऊंगा, ठीक है।
फिर वो चढ़ते गए, कंपनी कमांडर की बात मानना पड़ेगा, तो सबने बोला मेजर साहब चलो, बट चलते गए, बढ़ते गए, थोड़ी देर चढ़ने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे पहाड़ियों में उनको एक पर्टिकुलर झोपड़ी नजर आई, जहाँ पे उनको लगा कि यार यहाँ पे कुछ मिल सकता है। तो लोग खुश होके वहां पे पहुंच गए। तो दो जवान वहां पे भाग के जाके आए, बोले साहब ये तो चाय की दुकान लग रही है। तो सब खुश हो गए, बोलते अरे वाह, अर्ली मॉर्निंग बहुत बढ़िया चाय मिलने वाला है। तो मेजर साहब ने बोला चलो देख के तो आओ, खुला है कि नहीं। तो भाग के गए, देखा तो ताला लगा है वहां पे। मैं बोला अरे ये तो लॉक है। तो बोलता अब कौन बनाएगा चाय, और उसके अंदर है कि नहीं कैसे पता चलेगा। तो अब ये मोरल डिलेमा था इनके लिए कि ये चाबी तोड़ना इज इनकरेक्ट, क्योंकि किसी का परमिशन नहीं है, किसी और की प्रॉपर्टी है, कैसे तोड़ा जाए। लेकिन अपने जवानों के लिए उन्होंने ये डिसीजन लिया, बोला कि मोरलिटी छोड़ो, ब्रेक द लॉक, आई विल व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। बट देखो, तोड़ के देखो, अगर चाय मिल जाए तो क्या बात है। तोड़ा और अंदर खोला, देखा तो एक्चुअली वो जो थी वो एक चाय की दुकान ही थी। और वहां पे देखा तो वहां पे चाय के सामान, दूध, सब कुछ, बिस्किट, सब कुछ है। तो अब वहां पे जो सीनियर मोस्ट जवान था वो आके बोला अब क्या करें साहब, ये तो आदमी तो है नहीं, और हमारा जमीर बोल रहा है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन दिल बोल रहा है कि भाई अभी चाय चाहिए, अब क्या करें बताइए। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन था, लेकिन वजीर साहब ने बोला चलो चाय बनाओ। चाय बनी, सबने चाय पी, बिस्किट खाए, और उसके बाद सब जवान बड़े खुश हो गए, बोले अब तो सीधा वहां जाके रुकेंगे और कहीं नहीं रुकेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिचुएशन था, सब खुश थे। मेजर साहब ने सोचा कि जाते जाते इस बंदे को मैं थैंक्स कैसे दूं। उन्होंने अपने वॉलेट निकाला, उसमें जितने पैसे थे, कुछ हजार रुपए थे उनके पास, वो सारा पैसा जो है उन्होंने वो उनके जो डब्बा था वो चीनी का, उसमें डाल के चले गए। उसके बाद ऊपर चले गए, और इसके बारे में तक वो पहुंच गए, बड़े खुश थे, सब कुछ सही था। उसके बाद 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, 3 महीने बाद इनकी टर्न जो है वो चेंज होने वाली थी, दूसरी बटालियन आने वाली थी, और ये वापस जाने वाले थे। तो उन्होंने सोचा जब वापस जा ही रहे हैं, अब पहाड़ी से नीचे उतर रहे हैं, वो तो जाते जाते उस बंदे को थैंक यू बोल के जरूर जाएंगे, तो उसके दुकान पे जाके चाय जरूर पिएंगे। और ऐसा टाइम था जब वो बंदा खुला भी था, दुकान भी खुला था और बंदा भी था। बड़े खुश हो गए, सब बोलते अरे वाह बढ़िया हो गया। सब गए वहां पे और चाय पी सबने। और उसके बाद उस बंदे से जो है उन्होंने बात करना शुरू किया कि भाई क्या करते हो, क्या है, कैसा है। बड़ा अच्छा सा हम्बल सा लोग था, बूढ़ा सा आदमी था, परेशान था। और धीरे धीरे बातें होती रही। तो उन्होंने कहा कि भगवान, सो ऐसी कुछ बातें करते करते उसने बोला कि आप लोग तो भगवान की तरह हो साहब। तो मैंने कहा नहीं नहीं, हम कहाँ, हम भगवान है भाई, हमारा तो ड्यूटी है, हम तो ड्यूटी में जा रहे हैं, हम क्या भगवान है। तो भगवान पे मानते हो आप? बोलता अरे क्या बात कर रहे हो साहब, भगवान पे बिल्कुल मानता हूँ मैं, कैसे। बोलता कि अभी कुछ दिन की बात है, महीनों पहले की बात है, मेरा लड़का जो था वो टेररिस्ट उठा के ले गए, और उसको पूछताछ करने के लिए बहुत पीटा और जेल में डाल दिया। बेचारा बेकसूर था, वो कुछ जानता भी नहीं था, लेकिन उसको इतना मारा कि उसको हॉस्पिटल में डालना पड़ा। हॉस्पिटल में साहब मुझे बुलाया और बोला कि आपके इसके लिए जो है आपको इतना खर्चा लगेगा। उन्होंने कुछ 1000 रुपए बताए, और मेरे पास 20 रुपए पड़े थे, क्योंकि मेरा साहब कुछ यहाँ पे मैं रखता हूँ, चाय की दुकान है, कोई आता भी नहीं है, तो मेरी कमाई इतनी थी। मैंने बोला 20 को मिला के इधर उधर मिला के 100 रुपए मैं दे सकता हूँ साहब, उससे ज्यादा मेरे पास है नहीं। और मैं वापस आ गया। डॉक्टर ने बोला मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट तो कर रहा हूँ, लेकिन पैसे का इंतजाम करके आओ। मैं आया वापस, दुकान खुली तो ताला टूटा पड़ा था, और मैं घबरा गया। बोले हे भगवान तुमने ये क्या कर दिया, जो पैसे मैंने रखे थे वो भी कोई लेके चला गया। इसका मतलब ये है कि मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया, मेरा बच्चा क्या होगा। वो बड़ा परेशान होकर मैं दरवाजा खुला, और वहाँ पे देखा कि जो डब्बा है उसके अंदर भगवान आए थे, और उन्होंने मेरे दुकान में कुछ 4000 रुपए रख के गए साहब। और वापस आया, मेरा लड़का, उसका जो ट्रीटमेंट वो मैंने करवाया, 2000 रुपए दिए उसको शहर भेजने के लिए। अब वो शहर में नौकरी करता है साहब। भगवान नहीं था और कौन था उसमें। तो सारे जितने जवान थे ना, सब वो ऑफिसर की तरफ देखने लगे, और मेजर साहब ने सबको आंखें बंद करके इशारा कर दिया, कोई नहीं बोलेगा कि वो हम थे। और सबने ये चीज को रियलाइज किया, और इन्होंने चाय वाले को क्या कहा बताए, बोलता आप सही बोलते हो, भगवान। और उस चाय के साथ, कप ऑफ टी के साथ, हमारा जो एश्योरेंस है एंड फेथ जो है, फेथ वाला पार्ट है। ये जो एक चीज फेथ है, दूसरी चीज इसमें देखो द आर्ट ऑफ गिविंग। आप अगर ऐसे थैंक करना चाहते हो, क्या क्या बोल के, जैसे आपने बताया ना क्या करना चाहिए रोजमर्रा की जिंदगी में कि हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर पाए। यही छोटी छोटी चीजें हमें करनी, जहां हमें मौका मिले हमें जी भर के, दिल खोल के देना। दिस इज समथिंग कॉल्ड द जॉय ऑफ गिविंग। अगर मेजर साहब ने वो जॉय ऑफ गिविंग दिखाया होता
तो शायद किसी का भरोसा भगवान पे होता है। आप समझ रहे हो? Yes. Yes, yes. That is where I feel this major faith, the act of giving, the joy of giving, plays a major role in what we Correct. do. We practice gratitude. Gratitude आपसे नहीं आता। आप सोचो अगर इस बंदे के साथ ये होता कि उस दिन उसका लड़का मर जाता फॉर सम रीजन, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, वो भगवान पे कभी भरोसा करता? कभी भी। आप Correct. भले ही जितने भी ज्ञान दे दो उसको, क्या वो कभी बिलीव कर पाता? नहीं कर पाता। अगर उन्होंने उस दिन उसको बता दिया होता कि वो हम थे, सोचो उसका भरोसा जो आज जिस पर्टिकुलर चीज पे था, जो मिराकल पे था, वो टूट जाता। यही छोटी-छोटी चीजें हैं जो हमें करना है। आप दे रहे हो तो ऐसे दो कि लेने वाले को पता ना चले कि आपने दिया। यही ब्यूटी है देने की। When you give it wholeheartedly and you don't expect anything in return. And that's the beauty of it. Gratitude helps us in building a stronger and a positive relationship with the co-workers and जो हमारे family and colleagues हैं. So how do you justify that? I think मैं आपको एक चीज इसके ऊपर मैं बताता हूँ, ग्रेटिट्यूड के ऊपर तो नहीं, बट आप यहाँ पे मैं बताता हूँ कि आप कितने पॉजिटिव हो और आप कितने सेंसिटिव हो, ये बहुत ही ज्यादा डिसाइड करता है कि आपके आसपास के लोग आपको कैसे परसीव करते हैं इससे। लाइक फॉर एग्जांपल, who would remember a person who has not been of any help to you or kind to you? Nobody remembers them, right? So it is always that person who has been kind and helpful is always remembered for being what he is. तो ग्रेटिट्यूड की बात जब आती है, जब आप देख रहे हो कि जो दूसरा बंदा है, जैसे अभी किसी वर्क टीम में आप काम कर रहे हो, राइट? सो उसमें जब भी आप टीम में होते हो, ऑलवेज रिमेंबर दिस दैट कि फॉर मेकिंग यू अ पार्ट ऑफ अ टीम, यू शुड ऑलवेज बी very very kind and be sensitive to others who are going to be around you. ये फैमिली हो, रिलेशनशिप में हो या वर्क में हो, आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में हो, जब भी आप ग्रेटिट्यूड के बारे में सोच रहे हो, 3 चीजें आपको करनी ही करनी है। एक है कंपैशन, आपको किसी भी चीज में देखना है कि मैं किस पर्टिकुलर वे में किसी को हेल्प कर सकता हूँ। मेरे लिमिटेशंस, अगर आपके पास कंपैशन के बारे में एक पर्टिकुलर ये एक स्टोरी याद आता है। When Bill Gates was traveling to an when he was nothing, not a billionaire. At that given point of time, he was just entering into airport, and there was a newspaper guy who was selling newspaper in the streets. उसके पास जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे न्यूज़पेपर चाहिए तो, लेकिन मेरे पास है नहीं पैसे, I don't have the money to buy it. तो ये बंदा उसकी तरफ देखता है और उसके बाद बोलते हैं ठीक है ले जाओ। He just gives that $2 newspaper और वो लेके चला जाता है और he says thank you and leaves. उसके बाद कई बार आते जाते रहते हैं उस पर्टिकुलर जगह से एयरपोर्ट से, लेकिन कभी उनको वो बंदा दिखता नहीं है, मिलता नहीं है, टाइम नहीं रहता है, whatever it is, he becomes big by then. 10 years down the line he becomes very big. एंड एक दिन उसके दिमाग में होता है कि यार इस बंदे का मैंने पे नहीं किया पैसा, so I need to go back and give that money back to him. वो वापस जाते हैं एंड उस पर्टिकुलर बंदे को बोलते हैं कि very thankful that you gave me this newspaper and I always wanted to come back but I couldn't come back. ठीक है, so I took $2 probably but I am now $2,000. तो वो $2,000 का फिक्स है। This is my way of giving gratitude, showing gratitude. That person smiles. Newspaper vendor, he just smiles. I don't need. तो ये बोलते हैं क्यों? Why? Now because I'm a billionaire, I can always give you. That's not a big deal. So what he says, I really pity you now. बहुत अच्छा लग रहा है, कि आप ये कर रहे हैं। बोलते हैं आपके हिसाब से जो $2 मैंने आपको दिए जब आपके पास पैसे नहीं थे, do you think that is only worth $2 today? I think you have no idea of the value of that particular thing where I did not have money. I did not have money because I was selling newspapers at given point of time. I gave $2 to you. You will never be able to repay me because those $2 are beyond your prices.
सो जब कंपैरिजन की बात आती है तो हम ये सोचते हैं कि हमने तो दे दिया एंड हैविंग मनी ही सेड यू आर गिविंग मी दिस मनी व्हेन यू हैव मनी आई गिव यू मनी व्हेन आई डिडंट हैव मनी compassion is about that when you are able to help somebody and you do not have enough for yourself, that is compassion. अगर आप वो प्रैक्टिस करते हो, आप प्रैक्टिस करते हो where you are being kind each and every time when you are bursting out with your own personal issues, आपके रिजेक्शंस हैं, आपके ट्रॉमा है, आपका फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन जब भी कोई आपसे मिलता है, आप स्माइल के साथ मिलते हो, काइंडली बात करते हो, यू आर नॉट बीइंग एरोगेंट, यू आर नॉट बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल, वो मैटर when you're in a team, when you're in a family, when you're there in a relationship. I think those simple things are our way of practicing gratitude. अगर आपने वो नहीं किया तो आप कहीं ना कहीं ये दिमाग में लेके चल रहे हो कि मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन कर नहीं रहे हो. This is all like you are trying to earn karma. No, you never earn karma. Karma always, you always earn karma when you do things without expecting something in return. The moment you start expecting something in return, it's all, I would say, it's all selfish motive. There is a selfish motive behind it. That would never be. So that's my take of doing things when you're working in your team and with your family. You can have n number of issues. Who doesn't have it? Who's not struggling? काफ़ी सारे लोग मैं इंडस्ट्री में तो एक्टर्स मुझे बोलते हैं सर आई एम स्ट्रगलिंग. मैं ये चीज़ बोलता हूँ नो, who's not struggling? You take the best or the biggest stars in the world today, they also struggling. Everybody is struggling. And because we are struggling, right? So struggle and survival go hand in hand. आप struggle नहीं कर रहे हो तो you will not do it. Somebody else will take over. So you have to keep struggling, professionally, mentally, emotionally, and whatnot. End of the day, that probably is the journey. Yes. So at the end, sir, would you like to give any message to? I think मैं एक मूवी कोट करूंगा यहाँ पे because I love movies so much. There is a film called, कभी भी आपको अगर मौका मिले तो ये फिल्म जरूर देखना. It's a Wonderful Life. The name of the film is It's a Wonderful Life. 1960 में बनी थी, black and white Hollywood film है. Do watch the film. Wonderful film. Why I'm giving you this quotation of the film है, उसका जो protagonist है, जिसका जो lead है, उसके साथ एक बहुत बुरा होता है लाइफ में और उसकी बिजनेस जो है पूरी डूब जाती है, वो पूरा कर्ज में डूब जाता है एंड हिज फैमिली इज इनटू रोड्स एंड ही डजंट नो व्हाट टू डू. तो वो एक बंदा ब्रिज पे जाता है और कूदने के लिए सोचता है कि अब टाइम टू एंड दिस लाइफ बिकॉज आई विल नॉट बी एबल टू रीपे एनीवन ऑफ देम. मैं कुछ भी करूँ तो इनको नहीं कर सकता और मेरी वजह से इतनी सारी फैमिलीज, उसकी फैक्ट्री थी उसमें 2-2 हजार लोग काम करते थे, उनकी फैमिलीज का क्या होगा, ये तो बहुत सोचता है और उसके बाद सोचता है कि आई थिंक मैं मर जाऊंगा तो शायद मेरे इंश्योरेंस की मनी से कुछ लोगों को फायदा हो जाएगा, तो इट्स बेटर टू. So he's about to jump. That time he happens to see an angel, who's there on the same bridge. उससे पूछता है कि क्या कर रहे हो, तो बोलता है no, end my life. तो बोलता है कि what if I tell you that it is not a good decision to end your life? He said no, it is. देखो ये मेरे तो सारी चीज़ों को बताता है, देखो so many negative things have happened with me. तो बोलता है you know what, I'll tell you. So okay, is I'm an angel, but I've been born with one. I cannot fly without two. मुझे 2 विंग चाहिए उड़ने के लिए, लेकिन मेरे पास वो भगवान ने वो दिया ही नहीं. You know why? Because I have been sent to earth to find another. और वो विंग कौन है पता है? So this person says no, I can never be there. बोलता है एक काम करते हैं, in a flashback I will show you your life from the childhood. I will tell you how many good things that you have done with people who were around you. तुमने मरते हुए भाई को कैसे नदी से बचाया था, तुमने अपने पापा को ये दिया था उसकी वजह से उनका प्रमोशन हुआ, तुमने किसी दोस्त को ये किया था इसकी वजह से वो उसकी शादी हो गई. he says all this has happened. बोलता है ये सब करने वाला बंदा गिव अप कैसे कर सकता है. That is why the God has sent me so that I can take your wings along with me so that I can become a fulfilled angel. Exactly. हमारे लाइफ में भी ना हम सब एंजल विद वन विंग, हम अकेले नहीं उड़ सकते, हमें किसी का साथ चाहिए, तभी हम लोग साथ में उड़ सकते हैं. We can fly together. We are all angels with one wing. हमें एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का
क्या बोलते हैं, कंपैशन, काइंडनेस, और वेल, आई वुड से गुड विशेस, इन सब की रिक्वायर ज़रूरत है। अगर ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तब वी विल बी a full-fledged wing angel to wings and we can fly. So if you have one thing, it has been purposefully given to you. आज हम लोग जितने भी हैं इस धरती पे, हम सबके एक ही विंग है। दूसरा विंग हमें ढूँढना होता है in this world. That's our purpose. तो मेरे हिसाब से मैं सबको यही बोलना चाहूँगा कि we are all angels with the one wing. Remember this. कभी भी ये गलत फहमी में मत रहना कि तुम अकेले उड़ लोगे, तुम ऊँचाई को छू लोगे, तुम ये बन जाओगे, तुम वो बन जाओगे, कोई फायदा नहीं। Even if you become, there will not be peace, there will not be happiness, and without that, you're incomplete. So if you want to complete yourself, be respectful, be kindful to everybody around you, and smile, spread smiles around, make this world a better place. Much for your time, sir. Jai Hind. Thank you, Himanshu. Always a pleasure, and wish you all the very best and keep smiling. Okay, and Yes. this smile is very, very infectious, I'm telling you. The smile that we do, I don't know how many people get inspired with this smile. You know, the simple thing as a smile is very, very positive, and it can actually make this world a better place.